امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری. امریکی جنگی طیاروں کی مسلسل 5ویں روز ایران پر بمباری. کشم، سیرت، بندر عباس، جاس، بوشہر اور خرم شہر میں زوردار دھماکے ہوئے. سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے اندر داخل ہو کر بحری اثاثوں کو نشانہ بنایا. ایران کی سب میرین اور بحری جہازوں کی مرمت کی فیکٹری تباہ کر دی گئی. جنگ میں پہلی بار فضائی اور سمندری ڈرونز کا استعمال کیا. متعدد ون وے اٹیک سرفیس ڈرونز کے ذریعے اہداف کو تباہ کر دیا. ادھر ایران کی جوابی کارروائی. خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل برسائے. کویت، بحرین، اردن اور متحدہ عرب امارات میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اردن میں پرنس حسن ایئر بیس پر حملے کے بعد اسلحہ ڈیپو میں آگ لگ گئی. بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگر پر میزائل حملے. متاثرہ مقامات سے دھواں اٹھتا رہا. ایران نے کویت میں بھی 2 فوجی اڈوں پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا. پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکہ کے 3 فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ. امریکی حکام نے فوجیوں کی ہلاکت کی تردید کر دی. ایران امریکہ کشیدگی بڑھنے پر معاشی اشاریہ بے قابو. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی. برنٹ کروڈ آئل 5% مہنگا، قیمت $79.60 فی بیرل ریکارڈ. امریکی خام تیل کی قیمت بھی $3.5 اضافے سے $74.75 فی بیرل ہو گئی. پاکستان سمیت ایشیائی اور یورپی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2314 پوائنٹس کمی ریکارڈ. یورپی اسٹاک انڈیکس میں 0.09% کی کمی دیکھی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات. ان کے والد اور سابق امیر قطر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. وزیر اعظم نے مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا قطر کی غیر معمولی ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی گراں قدر خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دکھ کی گھڑی میں قطری قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم کے ہمراہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود رہے. امیر قطر کا دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر وزیر اعظم اور وفد کا شکریہ. کہا آپ کا دوحہ آنا دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات کی عکاسی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. سابق امیر قطر کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ قومی پرچم سر نگو ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ایئرپورٹ پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. فیلڈ مارشل دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے. دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. الجزیرہ کے مطابق برطانوی حکومت نے IRGC کو باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ کر دیا. اقدامات نئی قومی سلامتی کی قانونی شکوں کے تحت کیے گئے. IRGC کی حمایت، اس کے لیے کام کرنا یا اس سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا فوجداری جرم ہوگا. ادھر فرانس نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے سے صاف انکار کر دیا. فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران پر پابندیاں برقرار رہیں گی. یمن کے صنعا ایئرپورٹ پر حملے. یمنی حکام نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو فضائی آمد و رفت کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کر دیا. یمنی وزیر دفاع نے ایران پر حوثی علاقوں میں مسلسل پروازوں کا الزام لگایا. کہا فضائی حدود کی بندش سے حکومتی فورسز غیر قانونی داخل ہونے والے طیاروں کا راستہ روکیں گی. وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کر دیا. عدالت نے CD اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کرنے. وفاقی آئینی عدالت نے کیس میں حکم امتناعی بھی ختم کر دیا. جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اپنے فیصلے میں الف لیلا کی کہانی نہیں لکھیں گے. کیس دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا. فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا. ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت. انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی. نئے
नई गज डैम की तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने नई गज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। अहकामात में तनाज़ात के हल बावडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। डैम की तामीर के मुआहिदे में तय तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में बावडा फैसला करे। कॉन्ट्रैक्टर की खिलाफ वर्जी पर बावडा दोबारा टेंडर जारी करने में आजाद होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की तरक्की नहीं बल्कि पूरी कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का OIC की वजारती कॉन्फ्रेंस पर आए ख़वातीन से खिताब बोली। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फ़राहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ख़वातीन की माली शमूलियत और उन्हें कारोबारी मौक़े की फ़राहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फ़राहमी का अमल भी जारी है ताकि उन्हें जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा सके। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फ़ातिमा ने कहा, ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम उनका एक अहम ख्वाब है जिसके ज़रिए ख़वातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की जा रही है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ तरक्याती ज़रूरत नहीं बल्कि इस्लामी ज़िम्मेदारी भी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में मुनक्किदा OIC ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरा मुमकिन नहीं। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद उनकी तरक्की और मुआशी शिरकत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़वातीन को इज्जत, हकूक़ और कानूनी शनाख्त अता की। OIC की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी से निभाएंगे। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गैर एलानी लोड शेडिंग पर बरहम्स व हिलाफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतालिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं। विफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा। मज़ार कायद के अतराफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर का कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लाइन्स एरिया और खुदादाद कॉलोनी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध बोले कि मज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासा हैं। मज़ार कायद हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है। वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान बोले कि कौमी विरसा सकाफत डिवीज़न सकाफती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। भारत पर मजहबो नस्ली बुनियाद पर 5 करोड़ 20 लाख वोटर्स के नाम हज़फ करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने भारत को इंतखाबी फहरिस्तों से वोटर्स के नाम खारिज किए जाने पर बाज़ाबिता मुरासला इरसाल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मजहबो नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डाटा भी तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुरासले के मुताबिक मुस्लिम और बंगाली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुसूसन टारगेट करके वोटर्स को फहरिस्तों से निकाला गया। अमरीकी सदर का अपना हॉर्मज़ को कंट्रोल में लेने और ईरान की दोबारा नाकाबंदी करने का ऐलान। तमाम कार्गोज पर 20% की शरह से फीस भी आयद कर दी। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हॉर्मज़ में कोई रुकावट न डालने का मुआहदा किया था जो उसने तोड़ डाला। अब हम अपना हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाल कर इसे खुद चलाएंगे। अमरीका को अब अपना हॉर्मज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा।
अब न हॉर्मस खुली है और खुली रहेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों के लिए हॉर्मस के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाजत है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इसके ग्राहकों के लिए होगी। नए अहकामात पर अमल दरामद फौरी शुरू हो चुका। हर गुजरने वाले जहाज से सिक्योरिटी के अखराजात के तौर पर 20% रकम वसूल करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। वो जब भी हमला करेंगे हम उनको सख्त निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद हमले किए, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र के मुहाफिज बन जाएं। होर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी दावे पर ईरानी क़यादत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहीम रज़ाई का कहना है कि हमें आबना होर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर ख़ातमुल अंबिया की भी अमरीका को सख्त वार्निंग। बयान में कहा कि अमरीका को कभी भी स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। आबना होर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी फ़ौज की मर्जी के बगैर होर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का कहना है, ईरान इस वक्त आबना होर्मुज़ का दिफा कर रहा है। हमने आज अपना दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए कोई मुहिब्बे वतन ईरानी आबना होर्मुज़ से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इंक़िलाब की हॉर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरी जहाज़ों ने ईरान के तयशुदा रूट से हटकर पेशकदमी की, जिस पर पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। उधर मैरीन ट्रैफिक वेबसाइट के मुताबिक अपने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 5 कमर्शियल जहाज़ हॉर्मुज़ को अबूर कर पाए। ज़्यादातर जहाज़ों ने ओमान के बजाय ईरानी रास्ते को तरजीह दी।